Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 1. And we are going to start unit 12. Its title is The Giant Panda. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. First we'll discuss about it and then we'll find out what this unit is all about. Lecture 1, under the title of grammar, we'll learn about pointing words and we'll cover the SLO. Use words that point to something, this, that, these and those. Lecture 2, under the title of grammar, again we'll learn about pointing words and we'll cover the same SLO to use words that point to something, this, that, these and those. Lecture 3, we'll start reading and understanding the text and we'll cover the SLO to predict a story by looking at a picture in a text. Lecture 5 will continue and complete reading and understanding the story and comprehension, and we'll cover the SLO to interact with the text and use reading strategies to locate specific factual informations. Know that words combine to make sentences. Lecture 5, under the title of listening and speaking, we'll learn to recognize and respond to commands, and we'll cover the SLO to recognize physically and orally, to respond to and use simple sentences showing request and command in a school scenario. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. There will be another lecture 5B of this unit is about ribbons, and its SLO is use pictures or ribbons in text to increase understanding. This is how we are going to complete this. So the title of this unit is The Giant Panda, and its theme is life skills, curiosity and learning. Yes, my dear students, what this title and theme is all about? The Giant Panda is name of an animal और इसका थीम है लाइफ स्किल्स. सो बेटा हमारे इर्द गिर्द जितनी भी मखलूक़ात है ना, जितनी भी क्रिएचर्स हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, राइट? तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है पैंडा, और उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है और हम उससे क्या सीखते हैं. लेट्स सी. द जायंट पैंडा लिव्स इन चाइना. यहाँ से स्टोरी का आगाज है, जो कि जायंट पैंडा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ रहता है. चाइना में रहता है. इट हैज़ अ लार्ज बॉडी एंड अ राउंड फेस. और वो कैसा दिखता है? उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और उसका फेस राउंड यानी गोल होता है. इट हैज़ स्मॉल ईयर्स एंड अ ब्लैक सर्कल अराउंड ईच आई. इसके कान छोटे होते हैं और दोनों आंखों के इर्द गिर्द ये ब्लैक सर्कल लगा होता है. सुभान अल्लाह, दिस इज हाउ अल्लाह हैज क्रिएटेड इट. इट्स कोट इज थिक, यानी उसकी खाल, उसकी जो खाल है वो मोटी होती है, एंड वाटर प्रूफ, यानी उसमें से पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, पानी गुजर नहीं सकता. अगर वो पानी उसकी खाल पे गिरता है तो वो ऊपर से ही स्लिप हो जाता है, वो अंदर तक जज्ब नहीं होता. द पैंडा हैज बिग टीथ. पैंडा के दांत बड़े बड़े होते हैं. It has very powerful jaws to eat bamboos. इसके जो जबड़े होते हैं ना वो बहुत मजबूत होते हैं, इतने मजबूत कि वो बैम्बू खाता है, बांस खाता है. Which is very hard. बांस बहुत सख्त होता है बेटा, वो उसको खाना तो क्या, उसको तोड़ना ही आसान नहीं है. लेकिन अल्लाह ताला ने पैंडा को इस तरह से बनाया कि उसके दांत और उसके जबड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए तो वो बैम्बू आराम से खा लेता है. It eats a huge amount of bamboos. बहुत ज़्यादा बैम्बूस खाता है वो. It spends 14 hours a day eating. अल्लाह. दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल? 24, और उसमें से 14 यानी कि 14 घंटे वो खाता रहता है. ओह, दिस इज समथिंग. बेटा ये जब हम किसी से सीखते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग. एक हम सीखते हैं कि ये अच्छी बात है, हम सीख लें, और एक होता है कि नो नो नो, ये तो बड़ी डेंजरस बात है, हमने ऐसा नहीं करना. हम क्या 14 घंटे मुसलसल खा सकते हैं? नो नो, वी शुड नॉट. ओके, तो ये अल्लाह ताला ने हमें तो अक्ल भी दी है ना.
The rest of the time, बाकी वक्त में the panda is sleeping. 14 hours वो खाता है और बाकी टाइम वो सोता रहता है. It has no special sleeping place. उसको सोने के लिए कोई बेडरूम नहीं चाहिए, कोई बेड नहीं चाहिए, जो जगह मिलते वहां वो सो जाता है. The panda cub is tiny. पैंडा कब यानी जो पैंडा का बेबी होता है, उसका जो बच्चा है वो छोटा सा होता है, टाइनी होता है, स्मॉल सा, वो जायंट्स नहीं होता. It starts living alone at the age of 1.5 years. जब वो 1.5 यानी 1.5 साल का होता है तो वो अलग रहना, अपने मामा बाबा से अलग रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम गुड टू गो नाउ, राइट. सो बेटा यहाँ से हमें एक अच्छी बात ये सीखने को मिलती है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपने काम खुद करने चाहिए, ना कि हर काम के लिए मामा को कहे मामा कम एंड डू इट फॉर मी. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, उसमें हमें मामा की हेल्प भी चाहिए, और मामा की एब्सेंस में हमने वो काम नहीं करने होते. जैसे हम किचन में अकेले नहीं जा सकते, ठीक है. द पांडा इज नाउ वेरी रेयर. रेयर का मतलब है जो बहुत कम होते हैं. आजकल पांडा बहुत कामयाब हैं, अब नजर नहीं आते. इट इज प्रोटेक्टेड इन चाइना. इनको चाइना में महफूज किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, बिकॉज देयर आर अ फ्यू लेफ्ट. क्योंकि अब दुनिया में बहुत चंद रह गए हैं, तो इसलिए उनको स्पेशल केयर किया जा रहा है कि पैंडा हमारे पास सरवाइव करें, हमारी ज़मीन पर, हमारी दुनिया में मौजूद रहें, राइट. सो बेटा ये हमारे पास पैंडा के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ऐसे बहुत सी क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है. लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है कि हमने हर जगह से अच्छी बात सीखनी है, और हर मखलूक जिसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है उसको हमने वैल्यू करना है, राइट. क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह लुक़मान आयत नंबर 10, एंड वी सेंड डाउन वाटर फ्रॉम द स्काइज एंड दस वी कॉज एवरी नोबल काइंड ऑफ लाइफ टू ग्रो ऑन अर्थ, राइट. अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया ताकि दुनिया की हर जो जानदार मखलूक है वो जिंदा रह सके. तो इस आयत से हमें दो चीजें पता चली. एक तो पानी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरा ये पानी अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर क्रिएशन के लिए, हर मखलूक के लिए बनाया है. तो हमें चाहिए कि हम दूसरी मखलूकात का भी ख्याल रखें, परिंदों को पानी दें, जानवरों के पानी पीने का ख्याल रखें. और बेटा हमें हर जगह से जो अल्लाह की मखलूक है उनका ख्याल रखना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये एबिलिटी दी है कि हम अपने साथ साथ दूसरी क्रिएचर जो हैं उनका भी ख्याल रख सकते हैं. तो हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ की कदर करनी है, और इस आयत से हमें पानी की इम्पॉर्टेंस भी पता चल रही है कि पानी हमारे लिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है. इसलिए हमें पानी को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, और दूसरी मखलूक़ात के साथ इसको शेयर भी करना चाहिए, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये हमारे आज के जिस यूनिट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका एक छोटा सा खुलासा है. कल इंशाल्लाह इसके ग्रामर पोर्शन से हम अपने यूनिट का आगाज़ करेंगे. जो अच्छी बातें आज हमने सीखी हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हमने उसको जहन में रखना है, और जो अच्छी बातें हमने सीखी उनको अपने अमल में लाना है. That's it for today. Tomorrow I'll come again with a very interesting lesson. Till that time, keep learning and take very good care of yourself. Thank you and Allah Hafiz.